Good evening, aspirants. Welcome to Eternal Nursing Education, and hope you all are doing good. And today we are gonna have our class after so long. Okay, and how's your studies going on? And very few days are left. More 10 days are left for your NORCET 8.0. Hope your preparations are doing good. Okay. Now is the time you need to focus on only those last minute revision notes. Okay. जो भी आपके लास्ट मिनट रिविजन नोट्स हैं यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट. अभी आपके पास अभी फिर से स्टार्टिंग से मतलब ईच एंड एवरी फाउंडेशन बेसिक्स तक जाने का भी टाइम नहीं है. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू व्हाट द प्रिपरेशंस यू हैव मेड, जस्ट उसको ओवरलुक करना है. Okay, if you have made any some key points, if you have made some shortcut keys, okay, some information in a short time, if you want to overview those things you can do. Okay, and focus on all the test series which you have given and the rationals which you have taken down on your notes copies. Okay, आप उसमें से go through कर सकते हैं. Okay, and so let's start with our today's topic. Okay, and the today's topic that is from our OBG. Okay, that is preterm labor. Okay, okay, so this is preterm labor. But in a preterm labor, how does the baby actually see, how does the preterm baby looks like? Okay, if means agar preterm labor hua hai, okay, so that means we'll be delivering the baby, of course. Yes, so if you are delivering the baby, okay, the baby will be called as your preterm baby. Yes, so this is how a preterm baby looks like. Okay, so means विल बी गोइंग थ्रू, हम डिटेल्स में इस क्लास में देखेंगे कि कैसा एक प्रीटर्म बेबी दिखता है. ओके, एज वेल एज टर्म बेबी से प्रीटर्म बेबी कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, एज वेल एज विल ऑल्सो सी व्हाट इज प्रीटर्म लेबर, व्हाई इट हैपेंस, व्हाट आर इट्स causes and what are the problems associated with it. Okay, so today's our topic is preterm labor, so let's start with it. Okay, see, प्रीटर्म लेबर जाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली प्रीटर्म लेबर. प्रीटर्म लेबर मीन्स इन अगर किस वीक में अगर होता है तो हम इसे प्रीटर्म लेबर कहेंगे. सी, जस्ट सी, दिस इज अ स्केल. ओके, ओके, दीज आर द वीक्स ऑफ ए जेस्टेशन. अगर एक बेबी, ओके, if the baby is born between 35 weeks to 37 weeks, ठीक है, अगर the baby is born between, if the baby is born between 35 weeks to 37 weeks of gestation, अगर जो बेबी है वो 35 वीक्स से लेकर, सपोज मदर इज प्रेग्नेंट, ओके, टोटल अगर आपका जो बेबी है 35 वीक्स से लेकर 37 वीक्स के अंदर इफ द मदर इज हैविंग द लेबर, ओके, मदर को अगर लेबर पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, द मदर इज गेटिंग लेबर पेन एंड वी हैव टू डिलीवर द बेबी. सो इफ द लेबर पेन हैपन्स in between 35 weeks to 37 weeks, okay, if the labor happens between 35 weeks to 37 weeks, that is called as preterm labor. Okay, और जो preterm labor से जो baby that is getting produced, that is called as your preterm baby. ओके, am I clear? ओके, फिर अगर if the mother is having the labor and the baby is born between 37 to 39 weeks, ठीक है, if the baby is born between 37 weeks to 39 weeks, okay, that is called as your late preterm. उसे भी हम फुल टर्म कंसिडर नहीं कर सकते. अर्लियर वी यूज टू कंसिडर कि 37 to 41 was considered as your full term, but now it has been changed. Okay, now from 39 to 41 we are considering the full term, 41 weeks plus 6 days. Okay, so this is your late preterm. Okay,
Clear? That is not exactly preterm, but just a late preterm. Yes. After that, if the baby is born between 39 weeks to 41 weeks, that is called as your full term baby. Okay. Okay, sorry, I am sitting over here, so ये आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. Okay, just a second. That is called as your full term baby. Clear? और अगर इफ़ द बेबी इज गेटिंग बॉर्न, और या फिर मदर को अगर लेबर अगर पेन शुरू होता है आफ्टर 41 वीक्स, बियॉन्ड द 42 वीक्स के बाद अगर इफ़ द बेबी इज बॉर्न बियॉन्ड 42 वीक्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर पोस्ट टर्म बेबी. ओके, if I'll write it won't be visible to you, so I'm just saying you like this. Okay, so if the baby is born beyond 42 weeks of gestation, that is called as your post-term baby. Or if the mother is getting labor after beyond 42 weeks, that is called as a post-term labor, and the baby born is called as a post-term baby. Am I clear? So before going to that, first of all we need to understand that what is exactly preterm labor. Preterm labor का definition क्या है? Preterm labor is defined as the labor that takes place less than 37 weeks of gestation. अगर 37 weeks of gestation के complete होने से पहले ही, ठीक है, अगर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के कंप्लीट होने के पहले ही द मदर इज गेटिंग द लेबर पेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शी इज गोइंग थ्रू, ओके, एंड दोज लेबर पेन्स इफ आर दे आर ट्रू, दैट इज कॉल्ड एज योर प्री टर्म लेबर. यस, सो व्हाट इज प्री टर्म लेबर? The labor that takes place less than 37 weeks of gestation. Okay, and the baby that is born in that period is called as your preterm baby. So this is how, as I showed you, this is a preterm baby looks like. Okay, this is how preterm baby looks like, and the preterm babies they are having certain characteristics and features that are quite different from the term baby. That also we'll see. But first of all we need to understand अगर preterm labor होता है उसके साथ क्या problems हो सकते हैं. You got to understand that the mother is gonna have a preterm labor, but उससे पहले we need to understand क्या क्या problems उसकी वजह से हो सकते हैं. See, first of all, immature lungs. Okay, first is your immature lungs, second is your brain development is not proper. Brain development is not proper, or brain is not properly matured. Okay, so these are the two problems or the two basic concerns we need to focus with the preterm labor. Okay, am I clear? So agar if the mother is having a preterm labor, if she is going through the uterine contractions that is less than 37 weeks of gestation, then the preterm labor problems that can be, that is a immature lungs, and second one is a brain development. क्योंकि अगर आपका जो बेसिक 37 से 38 वीक्स के अंदर, ओके, इफ़ द बेबी इज़ बॉर्न, तो हम उसे प्रीटर्म बेबी कहते हैं. तो उस बीच में क्या होते हैं ना, लंग्स जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते हैं. क्लियर? सो लंग्स जो है दैट इज़ प्रॉपरली नॉट मैच्योर्ड, एज वेल एज ब्रेन डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो नॉट टेकन प्लेस प्रॉपरली. ठीक है, तो इसीलिए दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आफ्टर द बेबी इज बॉर्न उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन द एयरवे ब्रीदिंग पैटर्न. ओके, और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सर्कुलर भी नहीं मिल सकता है. ठीक है, सो द थिंग्स जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है. ठीक है, सो वी आर गिविंग सर्टेन मेडिकेशंस. ओके, सी medications used in preterm labor. This is very important. Okay, what are the medications that are used in preterm labor so that baby का जो lungs है वो mature हो सके. First of all, lungs की mature के लिए if you want medications that will be help in accelerating the lungs maturity. For lungs maturity,
we need to give corticosteroids to the baby, I mean to the mother, okay, so that जो बेबी के लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगे. ओके, सो corticosteroids is used in that helps in the lung maturation of the baby, and this is not given to baby, this is given to mother, क्योंकि बेबी अभी तक आया नहीं है, हमने बस डायग्नोज किया है कि इट इज गोना बिकम अ प्रीटर्म लेबर. ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू गिव corticosteroids to the mother. So this is the most important question कि कौन से corticosteroids are used which accelerate the lungs maturation. Okay, that is, first is your betamethasone, second is your dexamethasone. Okay, betamethasone and dexamethasone. बी डी से पहले आता है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर लाइक दिस. ओके, जो बीटामेथाजोन है उसको हम देते हैं जिससे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो बेसिकली जो बीटामेथाजोन है दैट वी आर गिविंग 12 mg, ओके, 2 times, ओके, 24 hours apart. क्या ये याद रहेगा आपको? ओके, विल इट बी, कैन यू रिमेमराइज इट? यस, जो बीटामेथाजोन है उसका जो डोजेज फॉर्म है वी आर गिविंग इट, आप ऐसे याद रखो, बी डी से पहले आता है तो 12 2 ज़ा 24. ओके, सो 12 mg वी आर गिविंग. व्हाट इज द डोजेज? 12 mg हम देते हैं मदर को कितनी बार? बी डी, दैट इज 2 times, 12 into 2 24, दैट इज 24 hours अपार्ट. क्या ये याद रहेगा आपको? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर क्वेश्चंस. ओके, then comes your dexamethasone, that is 6 mg, okay, 4 times, 12 hours apart. ये जो टाइम्स है that is the doses. okay, clear? okay, ठीक है, तो ये जो आपके जो टाइम्स जो मैंने लिखे हैं दैट इज योर डोजेस, यानी कि 12 mg. ठीक है, हम 12 mg देंगे, 2 बार देंगे, 2 डोज में, और 24 आवर्स अपार्ट. किसे? बीटामेथाजोन को. और डेक्सामेथाजोन को हम क्या करेंगे? 6 mg देंगे, 4 डोजेस, 12 आवर्स अपार्ट. क्लियर? ओके, डू यू गॉट इट? यस, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चंस आ जाते हैं दैट व्हाट आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज एंड व्हाट इज द डोजेस ऑफ योर बीटामेथाजोन और डेक्सामेथाजोन, एंड बेसिकली ये क्या हेल्प करते? दे हेल्प इन योर लंग मैचुरेशंस. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज योर ब्रेन डेवलपमेंट इज नॉट प्रॉपर. यस, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम देते हैं MgSO4. ठीक है, याद रहेगा आपको? यस, सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन कोपिंग अप ऑफ योर लंग्स मैचुरेशन एज वेल एज ब्रेन डेवलपमेंट. ठीक है, ये हो गया. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉजेज हो सकते हैं, कि क्यों द प्रीटर्म लेबर हैपन्स. आपके दिमाग में आया होगा कि बेसिकली व्हाट आर द कॉजेज ऑफ योर प्रीटर्म लेबर, ये होता क्यों है? सी, द मेन कॉज इज स्टिल इडियोपैथिक. ओके, द मेन कॉज इज स्टिल इडियोपैथिक. इडियोपैथिक मीन्स इसका अभी तक कॉज अभी तक अननोन है, वी डोंट नो प्रॉपरली कि व्हाई इट हैपेंस, बट इट हैज गॉट सर्टेन रिस्क फैक्टर्स ऑफ PTL. PTL माने प्रीटर्म लिवर. ओके, सो जो आपका जो प्रीटर्म लिवर है उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है, वो रिस्क फैक्टर्स अगर रहेंगे इट कैन लीड टू योर प्रीटर्म लिवर. ओके, जैसे कि पहला क्या? इफ
the mother is having polyhydramnios. Okay, if the mother is having polyhydramnios मतलब if the amniotic fluid is present in excessive अगर रहता है तो फिर हम उसे polyhydramnios कहते हैं। इसका एक रेंज होता है, इट इज अराउंड 5 to 25 के रेंज में अगर होता है वो, ठीक है। इफ इट इज प्रेजेंट बियॉन्ड 25 तो हमें पॉलीहाइड्रोनियस कहते हैं, और अगर वो 5 से लेस अगर रहता है तो ओलिगोहाइड्रोनियस कहते हैं। क्लियर? तो ओलिगोहाइड्रोनियस जो है दैट इज लेस देन द नॉर्मल। ओके, द प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन द नॉर्मल इज कॉल्ड एज ओलिगोहाइड्रोनियस, एंड द प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बियॉन्ड द नॉर्मल, ओके, दैट इज अ पॉलीहाइड्रोनियस। अगर मदर को बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड इज हैविंग एक्सेसिव पॉलीहाइड्रोनियस इज देयर, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है प्रीटर्म लेबर के लिए, ठीक है। अदर क्या है? ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस मीन्स अगर यूट्रस अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड है और काफ़ी एलोंगेटेड है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेच्ड है, ओके, इट कैन ऑल्सो लीड टू अर्ली लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। These are the things। और क्या है रिस्क फैक्टर्स? If twin pregnancy is there, okay, if there is twin pregnancies, so these are the few। अगर twin pregnancies हैं तो fewer space है, बहुत ज़्यादा, मतलब two twins are there, uterus size is not getting proper to them, ठीक है। if their size is increasing as per the gestation तो uterus जो है stretch हो जाएगा again। तो अगर uterus stretch हो गया तो again it will lead to your preterm labor। so first is your distended uterus, presence of polyhydramnios as well as twin pregnancies। these are the some risk factors which can lead to preterm labor। am I clear? yes, ठीक है, वी गॉट दिस कि दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जब मैंने बोला आपको कि लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं, तो क्या हमने ये देखा कि व्हाट आर द टेस्ट यूज टू चेक वेदर द लंग्स आर मैच्योर और नॉट? बेबी का जो लंग्स है वो प्रॉपरली मैच्योर है कि नहीं, कुछ टेस्ट कर सकते हैं हम। कैन वी डू एनी टेस्ट? यस, ऑफ कोर्स, टेस्ट आर अवेलेबल, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि द बेबीज लंग्स आर मैच्योर्ड और नॉट, हम ये भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली 2 टेस्ट आर देयर, ठीक है। वन इज योर बेस्ट टेस्ट। बेस्ट टेस्ट जो है वो हम सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट मानते हैं, विच इज यूज टू टेस्ट टू नो वेदर द फीटल लंग्स आर मैच्योर्ड और नॉट। ओके, देखिए, एक फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ठीक है, 1 फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल इज अ कंटेंट जो कि प्रेजेंट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, और वो बेबी के लंग्स में भी रहता है। अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो विल कंसिडर दैट द लंग्स आर मैच्योर्ड, और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं है देन वी विल कंसिडर दैट द लंग्स आर इमेच्योर। आप एमनियोटिक फ्लूइड कैसे भी आप एस्पिरेट कर सकते हो, इधर एमनियोसेंटेसिस से करा सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ योर फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। इफ फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, AF मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि द लंग्स आर मैच्योर्ड, ठीक है, तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट if the phosphatidylglycerol, if this content is absent in the amniotic fluid, if you are doing amniocentesis, okay, ठीक है, और अगर आपको पता चलता है मदर से आपने amniotic fluid synthesis करवाया और अगर आपको पता चलता है कि phosphatidylglycerol is absent, that means the lungs are immature, ठीक है, ये तो preterm labor है ही, उसके साथ we need to give corticosteroids to the mother, okay। 2 corticosteroids से मैंने बोला है, that is your betamethasone and dexamethasone, ठीक है। बीटामेथासोन का क्या डोजेज रहेगा? 12 mg, ठीक है, 2 टाइम्स, दैट इज योर 24 आवर्स अपार्ट, यस। और जो डेक्सामेथासोन है उसका क्या रहेगा? 6 mg, ठीक है, 4 डोजेस, 12 आवर्स अपार्ट, ठीक है। एम आई क्लियर? यस, दिस इज द बेस्ट टेस्ट, हम इसे सबसे बेस्ट वी कंसिडर इट, ओके, वी कंसिडर इट एज द बेस्ट। उसके साथ एक बेड साइड टेस्ट भी हम करा सकते हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट बट प्रोबेबली वी कैन कंसिडर इट, ओके। अगर बेड साइड में आप चेक कर रहे हो, आपको पता होगा कि बेबीज की जो लंग्स में एक सर्फेक्टेंट होता है, यू नो व्हाट इज सर्फेक्टेंट? ये एक सोपी कंसिस्टेंसी का है,
ओके। समहाउ मतलब थोड़ा सा सोपी कंसिस्टेंसी रहता है, जैसे आप मतलब मान लीजिए कि आपने थोड़ा मतलब सोप को ऐसे टच किया है, ठीक है, हाउ डज इट फील्स लाइक स्लिपरी एंड सोपी काइंड ऑफ, ठीक है। सो दैट इज दिस सर्फेक्टेंट जो है बेसिकली दिस इज अ कंटेंट विच इज हैविंग अ सोपी कंसिस्टेंसी, और उसे हम कंसिडर करते हैं अगर ये प्रेजेंट है तो लंग्स मैच्योर है, ठीक है, बिकॉज इट इज फाउंड इन मैच्योर लंग्स। अगर सर्फेक्टेंट नहीं है दैट मीन्स लंग्स आर नॉट मैच्योर। यस, तो हम क्या करते हैं, एक बेड साइड का हम एक शेक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, एक शेक टेस्ट लेते हैं जिसमें कि अगर इफ़ यू आर शेकिंग, ओके, और अगर आपका जो है मतलब बेसिकली एक बबल्स फॉर्मेशन अगर आ जाते हैं शेक टेस्ट में, अगर बबल्स फॉर्मेशन इज सीन एंड दैट मीन्स द सोपी कंसिस्टेंसी इज प्रेजेंट एंड दैट मीन्स सर्फेक्टेंट इज देयर, ठीक है। तो ये आपका बेड साइड एक टेस्ट है, ठीक है, क्लियर। दिस आर द थिंग्स। द बेस्ट टेस्ट इज योर फॉस्फेटिलग्लिसरॉल। इसको आप हमेशा द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हिच इज द मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर चेकिंग की फीटल्स लंग्स आर मैच्योर्ड और नॉट, दैट इज यू विल से नथिंग बट देन योर फॉस्फेटिलग्लिसरॉल एंड द सेकंड वन इज द बेड साइड शेक टेस्ट, ओके, एम आई क्लियर। अच्छा, एक चीज हमको और नोटिस करना है, एक स्क्रीनिंग करा सकते हैं हम, एक डायग्नोसिस या तो हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर आपका जो है मदर का जो सर्विक्स है, आपको पता होगा अगर जैसे ही सर्विक्स आपका जितना मतलब एक्सपैंड करता है उसका लेंथ उतना ही छोटा होते जाता है, एज यू ऑल नो इट, ठीक है। तो उसका लेंथ जो है वो कम होते जाएगा और जो उसका एक्सपेंशन है वो बढ़ेगा। एज द सर्विक्स डायलेट्स द लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक रबर पकड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ही आप उसको से ये एक्सपैंड करेंगे, उसे आप स्ट्रेच करेंगे, उसका लेंथ जो है ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सेम हैपेंस विद द सर्विक्स ऑल्सो, ठीक है। अगर सर्विक्स का लेंथ इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एज वेल एज जो सर्विकल डायलेशन इफ इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम करेंगे ये जो डायलेशन है, ठीक है, दैट मीन्स द सर्विक्स इज डायलेटेड एनफ, जिसकी वजह से आपको प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड अगर सर्विकल लेंथ अगर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, एंड इफ द सर्विक्स लेंथ इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर एंड और डायलिटेशन अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ है, डायलिटेशन मतलब एक्सपैंड हुआ है, दैट मीन्स यू कैन से कि the mother is gonna have a preterm labor, बहुत जल्दी उन्हें लेबर पेन शुरू होने वाला है, that is less than 37 weeks, ठीक है। that is a thing you need to understand, yes। तो हम क्या करना शुरू करते हैं, हम फिर अपने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना शुरू करते हैं मदर को। एंड वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, सी एक चीज़ मैंने आपको बोला नहीं आपको, ठीक है, जो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, it takes 48 hours to act। जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो आपको 48 आवर्स लगता है आपको एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस बीच अगर प्रीटर्म लेबर हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें तो प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अगर उसका एक्शन का टाइम अगर नहीं मिला तो हाउ विल इट इफेक्ट द थेराप्यूटिक इफेक्ट, कैसे प्रोड्यूस करेगा वो, ओके। सो बीटामिथाजोन एंड डेक्सामेथाजोन को 48 आवर्स लगेंगे टू एक्ट। बाय दैट टाइम हमें ये चेक करना है कि द मदर शुड नॉट हैव द प्रीटर्म लेबर, इसीलिए वी आर गिविंग मदर, ठीक है, हमें मदर को टोकोलाइटिक्स देना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, दे डिले द लेबर, दे डिले द प्रोसेस ऑफ लेबर, दे डिले द प्रोसेस ऑफ लेबर, ठीक है, टोकोलाइटिक्स आर गिवन। एम आई क्लियर, yes, these are the things you need to remember, ठीक है, कि basically to delay the labor what are the drugs, which are the drugs used to delay the labor, we will be saying tocolytics are there, और सबसे best tocolytics nifedipine, the best tocolytic we are considering, ठीक है, for a pregnant woman, clear। beta blockers it is prohibited, beta blockers you should not give, it is not good for the baby, clear, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, हमने कैसे स्क्रीनिंग करवाया, कैसे सर्विकल लेंथ हमने पता किया,
ठीक है। और फिर हमने कैसे किया, हमने मैनेजमेंट कैसा करवाया। और वन थिंग, एक और चीज़ आप करा सकते हो प्रिवेंटिव मेजर के लिए, अगर आपको लग रहा है कि द मदर इज गोना हैव अ प्रीटर्म लेबर, ठीक है, तो फिर हम एक वी आर अप्लाइंग कार्टिलेज। These are a kind of sutures जो कि we are putting inside means see this is a kind of sorry, okay, this is your uterus. At the neck of that हम क्या करेंगे ना, we are applying cartilage. It's a kind of sutures that will hold the opening of the uterus firmly और उसको expand और open नहीं होने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रीटर्म लेबर होने के जो चांसेस है दैट विल बी रिड्यूस। तो दो कार्टिलेज वी आर यूजिंग, दैट इज योर मैकडोनल कार्टिलेज एंड वन इज योर शिरोडकर कार्टिलेज। ओके, दिस आर द टू इंपॉर्टेंट कार्टिलेज। कब अप्लाई होते हैं, इसका टाइमिंग क्या है, आप इसको 12 से 14 वीक्स के बीच में कभी भी आप इसे अप्लाई करा लो, बट मेक श्योर टू रिमूव दिस कार्टिलेज बिफोर 37 वीक्स। बिफोर 37 वीक्स से पहले आप इसको यू नीड टू रिमूव दैम। ओके, सो यू नीड टू रिमूव द कार्टिलेज बिफोर 37 वीक्स एंड आप इसको अप्लाई कब करा सकते हो, 12 से 14 वीक्स के बीच में। यस, एम आई क्लियर? सो दिस आर द थिंग्स हम जो वी कैन डू टू मैनेज द प्रीटर्म लेबर, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड आई टेल यू द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रीटर्म बेबी और टर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी और टर्म बेबी में क्या डिफरेंस है, ये इज नॉट इन द टॉपिक बट जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। प्रीटर्म बेबी और प्रीटर्म आई मीन जो टर्म बेबी है उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, हाउ विल यू अंडरस्टैंड। सी, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, this is preterm baby, yes, and this is a term baby, ठीक है। जो प्रीटर्म बेबी है एज आई टोल्ड यू दैट विल बी गेटिंग बॉर्न, ठीक है, और हम लोग लेट प्रीटर्म नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं। और जो लेट प्रीटर्म है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली फुल टर्म, ठीक है। तो फुल टर्म प्रॉपर नहीं है, वो फुल टर्म से थोड़ा सा जल्दी हुआ है, तो हम उसे फुल टर्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फुल टर्म इज कंसिडर दैट इज द बेबी दैट इज बॉर्न फ्रॉम 39 वीक्स टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज, ठीक है। और आफ्टर 42 वीक्स अगर उसके बाद अगर कोई बेबी अगर इफ इट इज बॉर्न दैट इज पोस्ट टर्म बेबी हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, द बेबी दैट इज बॉर्न लेस देन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, और टर्म बेबी जो है ये 39 वीक्स से 41 के बीच में अगर इफ इट इज देयर द बेबी इज बॉर्न दैट इज कॉल्ड एज ए टर्म बेबी, ठीक है। एक चीज आपको पता होगा, एक लैन्यूगो है, ठीक है, एक लैन्यूगो है जो कि प्रीटर्म बेबी में बहुत एबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। आई विल शो यू द पिक्चर, वेट, सी, can you see this? Okay, these fine little hairs as you can see on the body of the baby, okay, this is lanugo. These are your fine hair that is present in the preterm baby, ठीक है। lanugo और the fine hair that is present basically in the preterm baby, term baby में वो इतना present नहीं रहता है, most abundantly it is present in your preterm baby, ठीक है। और ये जो है आपका दिस इज वर्निक सेस्योजा एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, ये फुल टर्म में भी रहता है, प्री टर्म में भी रहता है, प्री टर्म में थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो आपका फुल टर्म है उसमें थोड़ा कम रहता है, लेकिन प्रेजेंट दोनों में रहता है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, यू डोंट नीड टू पैनिक, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ओके। एंड हम इसे फोर्सिबली रिमूव नहीं करना चाहिए, यू शुड नेवर रिमूव दिस वर्निक सेस्योजा फोर्सिबली, दिस इज अ कर्डी मिल्की वाइट substance that is present stuck over the baby's body, it will go gradually, it will go automatically, ठीक है, it does not harms the baby, okay, this is वर्निक सेस्योजा, clear, this is the thing and it is normal, it is normal, but lanugo that is basically present in most probably in the preterm babies, and preterm babies जो होते हैं सिंस उनका जो है वेट काफ़ी कम रहता है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, मैंने आपको बोला था
ठीक है। अगर आपका बेबी का वेट इट इज लेस देन 2.5 kg, दैट इज कॉल्ड एज योर प्री टर्म बेबी। एंड टर्म बेबी का जो है दैट इज अ रेंज आफ्टर 2.5 to 4 kg के अंदर इफ द बेबी इज बॉर्न, दैट इज योर टर्म, मीन्स द बेबी इज हैविंग एन एडिक्वेट वेट। ओके, बट लो बर्थ वेट बेबी का क्या है, द लो बर्थ वेट बेबी इज कंसिडर व्हेन द वेट इज लेस देन योर 2.5 kg, that is LBW baby, low birth weight, and after 2.5 kg to 4 kg is considered as a normal weight of the baby। ठीक है। और अगर जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं दे आर सिंस दे आर लो बर्थ वेट एंड उनको हाइपोथर्मिया ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो दैट इज उनको मतलब क्या है कि दे नीड टू बी प्लेस्ड इन द इंक्यूबेटर्स। ओके, तो दिस इज हाउ अ बेबी प्रीटर्म बेबी लुक्स लाइक। ओके, दे आर क्यूट ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड जस्ट सी, ओके, तो लैन्यूगो इज प्रेजेंट, इसमें लैन्यूगो इतना प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है, तो आई एम मार्किंग इट लैन्यूगो इज एब्सेंट इन दिस। जो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं, ओके, द ब्रेस्ट बर्ड्स जो है बेबीज में जो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका जो प्रीटर्म बेबी में इट इज लेस देन 5 mm ब्रेस्ट बर्ड्स। ओके, जो निपल्स होते हैं एकदम जो बेबीज़ की बोथ मेल एंड फीमेल्स में जो ब्रेस्ट बर्ड्स है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते हैं क्योंकि वो प्री टर्म बेबी है। ओके, दैट इज लेस देन 5 mm, ठीक है। और ये जो है इट इज ऑफ कोर्स इट इज मोर देन 5 mm। ओके, सेकेंड, द ब्रेस्ट बर्ड्स दैट इज मोर देन 5 mm, ठीक है। जो ब्रेस्ट बर्ड्स की साइज है वो 5 mm से ज़्यादा है, जो कि रहना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। बट प्रीटर्म बेबी में जो ब्रेस्ट बर्ड्स आर नॉट प्रॉपरली मैच्योर, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, जिसकी वजह से वो लेस देन 5 mm के होते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है, वेट, यस, दे आर हैविंग अ वेट ऑफ लेस देन 2.5 kg, जबकि टर्म बेबीज का वेट कितना रहता है 2.5 to 4 kg, वी आर कंसिडरिंग नॉर्मल, ठीक है। यस, हाँ, जो प्रीटर्म बेबीज हैं दे मे हैव अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के प्रॉब्लम्स रहते हैं क्योंकि लंग्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं है। दे आर हैविंग HMD, दैट इज योर हेयरलाइन मेम्ब्रेन डिजीज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके, यस, हेयरलाइन मेम्ब्रेन, हेयरलाइन मेम्ब्रेन दैट जो कि लंग्स में प्रेजेंट रहता है फॉर योर दैट हेल्प्स इन प्रॉपर रेस्पिरेशन, तो ये हेयरलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उन्हें ज़्यादा होते हैं। जो टर्म बेबी हैं उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मतलब फॉर बेसिकली 48 से 72 आवर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिएंट टैकीपनिया, ट्रांजिएंट टैकीपनिया। वो इसलिए होता है कि मतलब सिंस देखिए आप जो मान लीजिए कि जो बेबी बॉर्न हुए हैं, ठीक है, उन्हें इमीडिएटली एज पर द एनवायरनमेंट में दे एक्वेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, जो कि क्वाइट नॉर्मल है। और उस टाइम में क्या होता है ना कि आप उसे इट इज़ अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इसे कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट, कोई ऐसा कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है फॉर योर ट्रांजिएंट टैकीपनिया। आई एम सेइंग इट इज़ अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इट कैन गेट ओन इट्स ओन, ठीक है, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग बेसिकली। बट हेयरलाइन मेम्ब्रेन डिजीज और द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, बेबी नीड टू बी प्लेस्ड इन योर इनक्यूबेटर्स। यस, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि जो आपके जो प्रीटर्म बेबीज़ हैं, ठीक है, दे आर मोस्ट प्रॉब्ली दे सफ़र फ्रॉम हाइपोथर्मिया, उन्हें हाइपोथर्मिया, क्योंकि वेट बहुत कम है सो दे मे सफ़र फ्रॉम हाइपोथर्मिया। ओके, इम्यूनिटी भी काफ़ी कम रहता है सो उन्हें हाइपोथर्मिया होने का बहुत चांस रहता है। सो रेडिएंट वार्मर्स दे नीड इमीडिएटली, ओके, प्रॉपर रेडिएंट वार्मर्स शुड बी कनेक्टेड टू द प्रॉपर लेबर रूम चैनल्स। ओके, और इसमें जो है इसमें हाइपोथर्मिया का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। सो और जो ईयर लोब्स होते हैं जब द प्रीटर्म बेबी दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, ईयर लोब्स एंड जेनिटालियास दैट आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड इन अ प्रीटर्म बेबी, हाउएवर दे आर प्रॉपरली मैच्योर्ड एंड प्रॉपरली डेवलप्ड ईयर लोब्स आर फाउंड इन योर टर्म बेबी, ठीक है। एम आई क्लियर? सो आई होप ऑल योर डाउट्स मस्ट बी क्लियर्ड अबाउट व्हाट इज़ प्रीटर्म लेबर एंड कब होता है ये, ठीक है, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, एंड व्हाट आर द कॉजेस एसोसिएटेड विथ इट, yes, what are the drugs can be given to the preterm labor mother, okay,
फिर what is a preterm baby, how it looks like, okay, what are its features as contrast to a term baby. Okay, so these are the things we went through. I hope your doubts must be clear, but if you are having any doubt, put your doubts in the comment sections. Okay, thank you for getting connected with us. Okay, like, share and subscribe the ENE channel, okay, for more useful content and informations. Okay, thank you, have a very good day.